So once again, good morning to all the students worldwide and all the students of Pride India Central School. So we'll be studying about the etymology of words, different words, how you can use that word and how you can improve your English in a very efficient way. And I am Engineer Kumar Harshvardhan, and I will be teaching you this how to use the words and the different forms of the words and the different what do you say, the ocean of words. I will be telling you and their meaning and how you can use it. So I am taking class on behalf of Pride India Central School, Rajdhan, Main School, Kavadia, one of the best schools in the district. I have no doubt to say about it because the way we teach and the materials that we provide is very much different as compared to others. Okay, so now we'll start with this. The first word that will go is A-C-C-E-N-T, ascent. What do you understand by the word A-C-C-E-N-T, ascent? There are two words. The first is A-C-C-E-N-T and the second is A-S-S-E-N-T, ascent. A-S-S-E-N-T, ascent. Okay. So what is the meaning of the first word, ascent? The first word meaning is that special importance. This is the meaning of special importance. This मतलब किसी को कोई अलग से तवज्जो देना, special importance. The meaning of this word is ascent means special importance or different type of speaking language. Okay, or there is also a meaning. The other meaning of this word is the different oral expressions. Is the D-I-F-F-E-R-E-N-T, different oral expressions, है ना? Different oral expressions as speaking. For example, if you go to UK and if you go to the United States or if you go to America, how do you speak? How are you? What's up? How are you doing? What's happening next to your house? Do you want something which you really need of? You can kindly contact me anytime 24/7. You can kindly contact me. So this is the other way of the speaking. That is the tone, the accent. The accent that they use is very much different from what we Indians have. For example, in Bihar, bikauj, for because we speak bikauj, है ना? For our we speak our, है ना? So all these are the different way that we speak, and this speaking is totally wrong. For garage we speak garage. गाड़ी को गैरेज में लगा दो. It's not garage. It's never garage. It's garage, है ना? It's never bikauj. It's because. Basically, in Bihar you can see people speaking like this. So this is totally wrong speaking, and also the accent, the way of speaking is very much different. Whereas if you go to America, if you go to some other country, UK and all, and if you go to Netherlands, Finland, the way of speaking is very much different. So that is the meaning of accent. What is this accent? The meaning of accent, A-S-S-E-N-T. The meaning of accent is to agree. To agree. Suppose if you tell me anything, I tell you anything, we both agree on the same thing, है ना? There is a topic. If I tell you on that something on that topic, you tell me something on that topic, and we both agree. हाँ, सही है. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. जो मैं बोल रहा हूँ वो भी वही आप भी बोल रहे हो, और हम दोनों उससे सहमत हैं. तो इसका मतलब होता है एसेंट मतलब टू एग्री, है ना? ऐसे मतलब टू एग्री और एक्सप्रेस एग्रीमेंट. एक्सप्रेस एग्रीमेंट, है ना? एक्सप्रेस एग्रीमेंट. तीसरा वर्ड जो हम देखेंगे वो है क्या? ईगो. ईगो मतलब जिसको घमंड होता है बहुत, है ना? ये हैं, वो हैं, ये कर देंगे, वो बिहार में सुने लोग बोला, ये कर देंगे, हम ये कर देंगे. करेंगे कुछ नहीं, आता जाता कुछ नहीं, लेकिन हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे. आपने सुना होगा. तो बेसिकली एग्री मतलब यहाँ ईगो. ईगो का मतलब होता है यू हैव अ सेंस ऑफ प्राइड इन योर सेल्फ. अ सेंस ऑफ प्राइड इन योर सेल्फ. अ सेंस ऑफ प्राइड. Unfortunately, our school name also is Pride India Central School. A sense of, so therefore you should have you should be proud. You should not be egoistic, but you should be proud of yourself that you are studying in Pride India Central School. So a sense of pride in yourself. Okay, a sense of pride in yourself. Ego मतलब you are having a sense of pride. एक अंदर से है कहीं ना कहीं कि हम तो superior हैं, हम तो बड़े हैं, हम तो कुछ ऐसा है कि क्या कहें, कुछ शब्द नहीं मिलता बोलने के लिए उसके लिए. Okay, then altercation. The fourth word which we are learning is altercation. What is the meaning of altercation? Means it's a noisy quarrel. Noisy quarrel. Noisy quarrel मतलब झगड़ा जिसमें लोग बहुत चिल्लाते हैं, है ना? तो देखा हो कई बार झगड़ा होता है यहाँ गांव में, तो लोग बहुत चिल्लाते हैं, है ना? जोर जोर से हल्ला करेंगे, क्योंकि जो जितना ज्यादा हल्ला करता है वो उतना ज्यादा बलवान आगे हो गया, है ना? तो नॉइजी quarrel, इसका मतलब बहुत जोर जोर से हल्ला करके
बहुत चिल्ला के लड़ना। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट लॉजी, LOGY। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लॉजी, है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लॉजी? मीन्स कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड मतलब कुछ काम करना है, समझ में नहीं आ रहा, करें नहीं करें, लेके आगे जाएं या नहीं जाएं, ये होगा या नहीं होगा। एग्जाम में सवाल आया, क्या इसका यही जवाब है? कंफ्यूज है कि कुछ कहीं पढ़े थे लेकिन अभी याद नहीं आ रहा क्योंकि शाम को पढ़ा नहीं है, शाम को टीवी देख रहे थे, वीडियो गेम्स खेल रहे थे, यूट्यूब देख रहे थे, इसको बोलते हैं हम कंफ्यूज्ड। और स्लो टू रिएक्ट, इसका दूसरा मतलब भी क्या है? स्लो टू रिएक्ट। इट्स मीनिंग इज कंफ्यूज और स्लो टू रिएक्ट। नेक्स्ट वन इज एंथ्रोपोलॉजी, ANTHROPOLOGY, anthropology. What is the meaning of anthropology? That is the study of origin and social relationship of human beings. The study of origin मतलब जहां से उत्पन्न हुआ है, origin मतलब जहां से उत्पन्न हुआ, निकला वो। तो the study of origin and social relations, social मतलब सामाजिक, social relationships of human beings, है ना? Study of origin and social relationship of human beings. अब next है ambivalence. What is the meaning of ambivalence? का मतलब क्या होता है? ambivalence का मतलब क्या होता है? मतलब it's like mixed feeling, mixed feeling or emotions, or emotion. It is the, what is it? Mixed feeling or emotions. Ambivalence means I am ambivalent about what would happen tomorrow, and I have a mixed feeling about what would happen tomorrow. I am ambivalent about my results in the examination, and I have a mixed feeling about my results in the examination, whether I am going to do very good or I'll be just up to the mark, or I'll be below the average. So I am just ambivalent about it. So this the meaning is ambivalence is mixed feeling. So next we will move on to our next, this one. The next is affluent, AFFLUENT. Affluent मतलब who is rich, who has a huge amount of money, जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत अमीर है. For example, if you take the MLA of Khagadiya, she is the richest MLA and the most uneducated MLA. She is the richest MLA and the most uneducated MLA of Khagadiya. She has the highest amount of money among all the MLAs in the ruling party, that is the JDU. Okay. So this is rich, huge amount of money. Okay. Then we will move on to the next one. Opulence. 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 Opulence मतलब luxury. LUXURY. लक्ष्मी आरामदायक, जिसके पास इतना पैसा है कि वो दुनिया की सब आराम खरीद सकता है. ऑप्लुएंट, ही इज एन ऑप्लुएंट पर्सन. फॉर एग्जांपल धीरूभाई अंबानी इज एन ऑप्लुएंट पर्सन. उनके पास इतना पैसा है कि वो दुनिया की हर खुशी खरीद सकते हैं, है ना. तो ऑप्लुएंस, लग्जरी. स्पाई, कई सारी वेब सीरीज आ रही है, इसमें आपने देखा है स्पाई मतलब टू वॉच केयरफुली. जो लोग किसी के पीछे लगे रहते हैं, स्पाई करते रहते हैं, देखते रहते हैं, उसकी मूवमेंट को देखते रहते हैं, है ना. ऑब्जर्व भी इसको बोलते हैं, ऑब्जर्व. सो क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जर्व भी बोलते हैं. स्पाई मतलब टू वॉच केयरफुली, टू ऑब्जर्व. जो टेररिस्ट लोग होते हैं ना, जो आपका जो NIA है, हमारा नेशनल इंटेलिजेंस जो है, वो क्या करता है, वो टेररिस्ट के ऊपर अपनी आंखें गड़ाए रखता है. तो NIA इज स्पाइंग ऑन द टेररिस्ट, है ना. तो वही सब होता है. स्पाइंग मतलब टू वॉच केयरफुली, ऑब्जर्व केयरफुली, किसी को बहुत ध्यान से करना. मेलाइन, MALIGN. मेलाइन का मतलब क्या होता है? किसी के बारे में बुरा बोलना, है ना. आप एक ही स्कूल में पढ़ रहे, एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई आपको बंदा या बंदी अच्छा नहीं लग रहा है, तो यू स्टार्ट मेलाइनिंग अबाउट हिम. मतलब आप उसके बारे में जो है बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं. तो स्पीकिंग बैड अबाउट समवन अबाउट समथिंग इज कॉल्ड एज मेलाइनिंग. स्पीकिंग बैड अबाउट समवन और समथिंग, ओके, इज कॉल्ड एज मेलाइनिंग. डू नॉट मेलाइन अबाउट अदर्स, है ना. कीप योर माउथ शट, है ना. पीपल से प्लीज डू नॉट मेलाइन अबाउट अदर्स, कीप योर माउथ शट, है ना. दूसरों के बारे में चुगलीपंती मत करो, बुरा भला मत बोलो, है ना. अपने जुबान पे ताला के रखो, अपने जुबान को बंद रखो. स्पीकिंग बैड अबाउट अदर्स इज नोन एज
मेलाइनिंग है ना, इफ यू आर स्पीकिंग बैड अबाउट अदर्स, किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं, किसी के बारे में खराब बोल रहे हैं, तो उसे हम ये कहते हैं। अपने रोजमर्रा जीवन में ये सब चीजों का उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैगन, P-A-G-A-N। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैगन? इट्स लाइक पर्सन हु डज नॉट एक्नॉलेज योर गॉड। पैगन वी ऑल्सो कॉल इट एज इनफिडल, INFIDEL, इनफिडल। ये काफी शब्द आपको इस्तेमाल होगा अंग्रेजी में। अगर आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं तो काफी बार ये शब्द इस्तेमाल होता है। जब कोई मूवी कोई रिलीजन के ऊपर बनती है, कोई भी जब मूवी है, कोई भी सीरीज है रिलीजन के ऊपर, मतलब कि हमारे धर्म के ऊपर बनती है, तो काफी बार ये इनफिडल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसको रिलीजन से ही कुछ लेना देना है, भगवान से ही कुछ लेना देना है, जिसे किसी ने नहीं देखा है उसके बारे में जो लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, है ना। इनफिडल, पर्सन हु डज नॉट एक्नॉलेज योर गॉड, इसका मतलब यही होता है पर्सन हु डज नॉट एक्नॉलेज योर गॉड। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस्लाम को बोलेंगे तो इस्लाम ये बोलेगा कि ये हिंदू लोग जो है हमारे भगवान को एक्नॉलेज नहीं करते, हमारे भगवान को नहीं मानते, ये लोग ये कहते हैं। अभी आपने देखा कि बैंगलोर में जो है, मैं जहाँ बैंगलोर में रहता था वहीं करीब आधे किलोमीटर दूरी पे मेरे घर से जो है वहाँ पे दंगा हुआ कुछ दिन पहले, है ना। क्या हुआ कि कुछ मुसलमानों ने शायद हिंदू भगवान के कुछ चलचित्र भेजे जो अच्छे नहीं थे, जो मतलब जो बुरे थे, जो सार्वजनिक नहीं होने चाहिए थे, जो कि प्रॉपर नहीं थे, है ना। जो उनका पोशाक था वो सही नहीं था उसमें। और फिर उसके बाद वहाँ के एमएलए जो हैं कंस्टिट्यूंसी के, पुलकेश्वर नगर कंस्टिट्यूंसी के जो एमएलए हैं, वो उनके नेफ्यू ने जो है फिर उनको वापस कुछ प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर लिख के भेजा। और फिर वहाँ पर कई 3000-4000 की तादाद में जो है मुसलमान वहाँ इकट्ठा हो गए, कट्टा लेके और फिर आपको तलवार लेके, बंदूक सब कुछ लेके, और फिर उन्होंने वहाँ के एमएलए का घर जला दिया, बाहर खड़ी आम लोगों की गाड़ियाँ जला दी, है ना। तो काफ़ी कुछ हुआ वहाँ पे। तो ये क्या हो, ये वही मानते हैं कि भाई हिंदू लोग जो हैं हमारे भगवान को एक्नॉलेज नहीं करते। हिंदू लोग को ऐसा लगता होगा कि शायद मुस्लिम भाई जो हैं वो हमारे जो हैं भगवान की एक्नॉलेज नहीं करते। बेसिकली हिंदू भाई को ऐसा लगता तो नहीं है जैसा है, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं वहाँ पे भी, उदंड लोग हैं जो ऐसे करते हैं, और कुछ उदंड लोग उस तरफ भी है जो ऐसे करते हैं। तो इसी को बोलते हैं इनफिडल, है ना। पर्सन हु डज नॉट एक्नॉलेज योर गॉड, अपने भगवान, जो दूसरे के भगवान को नहीं मान्यता देते हैं। अब दूसरा जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मिसोगैनिस। इसका मतलब होता है, मिसोगैनिस मतलब कि अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, ये आपको कम ही लोग मिलेंगे जिन्हें लड़कियां पसंद नहीं आती हैं, हु डिसलाइक्स वुमेन और हेट्स वुमेन, है ना। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, ये लोग साइको होते हैं। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो साइको, जो दिमागी मानसिक तौर पे थोड़ी सी ये है, या फिर उनके जीवन में कुछ ऐसा बहुत बुरा हुआ है जो किसी महिला ने किया है उनके साथ जीवन में, तो फिर उन्हें जो है महिलाओं के प्रति एक घृणा सी हो जाती है, वरना बेसिकली होनी नहीं चाहिए। और अगर कोई ऐसा करता है तो बिल्कुल उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, है ना। तो पर्सन हु डिसलाइक्स वुमन और हेट्स वुमन। सो नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो है इक्विवोकेट, EQUIVOCAT। ये बेसिकली हम लोग पॉलिटिशियंस के बारे में यूज करते हैं। इक्विवोकेट मतलब वो जब अपना एजेंडा बनाएंगे, आपके पास जाएंगे तो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, कथनी कुछ और है, करनी कुछ और। जब वो आपके पास जाएंगे तो आपको हम घर बना देंगे, आपको पानी देंगे, आपको बिजली देंगे, आपको सड़क देंगे, आपको शिक्षा देंगे, आपको सुरक्षा देंगे, सब कहेंगे। और बनने के बाद आपको ये भी नहीं देंगे, 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 ये आपकी बुर्बकी है, आपने मुझे वोट दिया, वो आप जानिए, है ना। तो वो लोग ऐसा काम करते हैं। इक्विवोकेट मतलब क्या, अनक्लियर, who is unclear in thoughts, unclear in order to mislead, unclear in order to mislead, है ना। जो बड़े बड़े वादे करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नौकरी देंगे, और सबसे ज्यादा वादा तो करेंगे, अरे हमारे जात भाई आप हैं, आपके तो सबसे पहले करेंगे, उनके लिए भी नहीं करेंगे। ये जात पात के नाम पे वोट लेते हैं, जात वाले के लिए भी नहीं करते हैं, है ना। तो इसका मतलब है इक्विवोकेट, जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, है ना, उसके सामने उसकी बातें, इसके सामने इसकी बातें, उस जात वाले के सामने उस जात वाले की बातें, अगले दूसरे जात वाले के सामने दूसरे जात वाले की बातें, सबके सामने अच्छी अच्छी बातें करेंगे, फिर आपको ठग लेंगे, आपका वोट ले लेंगे, और फिर खत्म। उसके बाद राम राम, वो अपने रास्ते, आपको छोड़ देंगे अपने रास्ते, है ना। फिर हो गया ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है, एक छोड़ छोड़ के, है ना। एवरी सेकेंड इन सीरीज, एवरी
सेकेंड इन सीरीज, ऑल्टरनेट मतलब एवरी सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल ये तो ये पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा, इसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एवरी सेकेंड इन द सीरीज। ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ छोड़ के, ओके। फिर फिलैंडर, PHILANDER, फिलैंडर मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो वोमनाइज, इसका मतलब होता है वोमनाइज, जो हमेशा जो महिलाओं की खोज में रहता है। हैविंग एरोमस अफेयर्स, में जो महिलाओं के साथ उसके अफेयर्स रहते हैं, महिलाओं की ही खोज में रहता है। हैविंग एरोमस, एमरस अफेयर्स, AMOROUS, एमरस अफेयर्स मतलब जो हमेशा ढूंढता रहता है कोई महिला मिले उसके साथ हम अपना संबंध बना सके। हैविंग एमरस अफेयर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? फिलैंडर बोलते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट और बढ़ेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो लोगों से ज्यादा बात नहीं करता है। सपोज फॉर एग्जांपल राहुल इज एन इंट्रोवर्ट पर्सन, ये एक ऐसा बंदा है जो ज्यादा लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं है, ज्यादा किसी के साथ इसकी बातचीत नहीं होती है, किसी के साथ ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। मतलब एग्जांपल आपको मतलब इंट्रोवर्ट मतलब अ पर्सन हु डजंट सोशलाइज, ज्यादा लोगों के साथ बातचीत, ज्यादा सोशलाइज नहीं होता है, ज्यादा बातचीत, ज्यादा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर आम तौर पे भी आम जिंदगी में भी लोगों के घर घर जाना मिलना या लोगों के साथ कहीं बाहर मिलना नहीं, अपने काम से मतलब रखता है ना, उसको हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट पर्सन हु डजंट सोशलाइज मच, पर्सन हु डोंट सोशलाइज मच, ज्यादा किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है। इसका ऑपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट, मतलब जो आदमी हर किसी से मिलता है, फेसबुक, इंस्टा, सब पे हमेशा वो प्रेजेंट रहता है, हर किसी के साथ मिलता है, जहां बाजार में मिल जाए वहां पे बातचीत शुरू, 10 लोगों के साथ, घर पे जाए किसी के साथ बातचीत, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट पर्सन हु मिक्सेस विथ ऑल, है ना, जो सबके साथ बातचीत करता है, सबके साथ घुलता मिलता रहता है, सबके साथ उसकी चर्चा होते रहती है, बातें होते रहती है, यहाँ की वहां की, बेमतलब का भी बातें करता रहता है, दूसरों के साथ मिलता रहता है ना, बेफजूल का समय बर्बाद, तो उसे हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंफर्टेबल। ये तो आपको इसका मतलब पता है, आरामदायक। कंफर्टेबल मतलब आराम होता है, बिल्कुल आराम से रहना, है ना, टू बी आराम से बिना किसी चिंता के कंफर्टेबल हूँ मैं, आई एम कंफर्टेबल ऑन द सोफा। हाँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, बिल्कुल अच्छा मुझे लग रहा है, बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है। और द लास्ट वन है इटिमोलॉजी। द लास्ट वन इज इटिमोलॉजी का मतलब होता है द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, है ना, हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। आई थिंक दिस विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। इतने शब्द हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इससे बहुत ही नॉलेज होगा, बहुत कुछ आपको पता चलेगा, है ना। आप इन शब्दों का प्रयोग जो है इंग्लिश में कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आशा करता हूँ और हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपया ठेठी ना बोले। ठेठी ना ही तो कोई भाषा है और ना ही इसे कोई नेशनल मान्यता प्राप्त है ना। आप अपने घर में अगर नहीं इंग्लिश बोल पा रहे हैं तो कम से कम शुद्ध हिंदी में बोलिए, है ना। और जहाँ भी आप लोगों को लगता है कि नहीं ये पर्सन नॉलेजेबल है, इस पर्सन को ज्ञान है, इसके साथ मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ, तो उससे अंग्रेजी में बात करें। हमारे स्कूल में कुछ बच्चे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो मुझसे अंग्रेजी में कोशिश करते हैं बात करने की, मैं भी उन्हें अंग्रेजी में ही रिप्लाई करता हूँ। और जहाँ उनसे गलतियाँ होती हैं मैं उन्हें बताता भी हूँ कि यहाँ शायद आपसे गलती हो गई है, आप इसे सुधार ले। तो यही एक बहुत अच्छा तरीका है अंग्रेजी सीखने का, वरना जीवन भर हेरे गेरे मेरे होता ही रहेगा, वो तो चलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइड इंडिया सेंट्रल स्कूल एंड ऑल द स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड। काइंडली stay at home, take care of all your family members, and stay home, stay blessed, and keep yourself in contact with the books, in touch with the books, so that you can constantly progress, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के ही आप आगे बढ़ना चालू करेंगे। So thank you so much. I am Engineer Kumar Harshvardhan and I have been taking class on behalf of Pride India Central School, Rajdhan, and thank you so much for listening to me patiently, and stay home, stay blessed. Thank you.